talk about relative order of energies of molecular orbitals. Now it's very important that the molecular orbitals energies are always depending on the two factors. So what are these two factors? First is your what is the nature of your atomic orbital. ठीक है, मतलब कौन सा आपने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज़ करा गया फॉर विच इट हैज़ बीन फॉर्म, है ना. एंड सेकेंड इज दैट योर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, फॉर्मिंग द molecular orbitals. Let's talk about these points. Let's see. So if I am talking about by definitely nature of atomic orbitals आपका या कैसा है आपका वो भाई इस s orbitals वाले हैं, p orbitals हैं, या आप कौन सा atomic orbitals यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से देखते हैं ना. तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो बेसिकली आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो आप कैलकुलेट करते हैं दैट वाज बेस्ड ऑन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ के थ्रू. तो उसके लिए एनर्जीज़ निकाले गए थे और इसमें जो जितने भी होमोन्यूक्लियस डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स था उनका सिनेरियोज रखा गया. तो देखिए रेंज करी गई थी. उस रेंज को आप याद रखना कि पहले आपका सिग्मा पनेस होता है, उसके बाद आप इसको भरेंगे. ठीक है, एंड मतलब सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फिल्ड, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड, then your sigma bonding molecular orbital of 2s will be filled, then your sigma anti bonding molecular orbital will be filled, then you can fill pi 2px or pi 2py. The next is 2pz, anti-bonding pi, anti-bonding next is anti-bonding 2pz, right. So this way, this is the energy order which you have to do. मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में आप यही रूल फॉलो करते हैं, लेकिन सिर्फ आप ऑक्सीजन में और F2 में ये रूल फॉलो नहीं होता, उसमें रूल अलग होता है, उसके एक स्पेशल केसेस होते हैं, उनके अलग हैं, वो भी मैं लिखा देती हूँ. तो आपको रिमेंबर करना कि बाकी सब में तो आप ऐसे ही फिलिंग रूल चलाएंगे, लेकिन जब आप ऑक्सीजन और F2 की बात करेंगे तो फ़र्क होगा. उनका भी लिख लीजिए कैसे फ़र्क होगी. ये लर्न कर लोगे तो बहुत आसान है याद करना, मतलब आप आराम से अपना स्ट्रक्चर्स जो है वो बना सकते हैं. आई एम राइटिंग इट फर्स्ट. ठीक है, सो फॉर दैट यू फॉलो दिस रूल. देखो थोड़ा सा चेंज है इनके में, डिटेलिंग में हमें इतना नहीं जाना है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बट प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग, दीज टू एग्जाम्पल्स. Now one more topic in this you will study about bond order. So bond order basically the number of covalent bonds formed by overlapping of the atomic orbitals. That is, and it gives you the, we have seen about the stability of the molecule also. So bond order is very important that there is a formula for calculating about the bond order, and bond order is important that it gives you a characteristics quality of a molecule also, because you are just simply calculating the number of covalent bonds, and basically that is formed by the overlapping of atomic orbitals, and that leads to the stability of the molecule. That is the bond order. I am showing you the definition. There is a formula also for the bond order, and that particular bond order, if you see, that bond order formula is equals to half number of electrons in bonding molecular orbitals divided by, or not divided, basically it's minus by number of electrons in anti-bonding molecular orbitals.
right? So half number of electrons present in the bonding molecular orbital minus, so just now we are just having a look of it, but detailing with examples we'll see. So I think things are clear to you how it's important. What is the importance of bond order? It gives you a characteristic quality of a molecule. It tells you about the stability of a molecule also. Let's focus on that part also. Children, stability of the molecules can be easily understood by this bond order, and let's focus on it. Suppose you see now in the formula we have having the number of electrons in the bonding molecular orbitals and number of electrons in the anti-bonding orbitals. So दोन तीन conditions होती है, may be possible they can be same. एक कंडीशन हो सकती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग जो आपके कंडीशन हो जाए वो ज़्यादा हो जाए वैल्यू, और एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाए. तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की कैसे स्टेबिलिटी आप निकालेंगे, है ना, क्या वैल्यूज़ निकलेंगे आपको. देखो कॉमन सेंस वाली बात है, जो हमारा फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इज़ रिलेटेड टू योर हाफ एन बी माइनस एन. अब तुम मुझे खुद बताओ इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें कब बॉन्ड ऑर्डर की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कब नेगेटिव मिलेगी, कब ये अनस्टेबल वैल्यू निकलेगी, है ना, ज़ीरो आएगी वैल्यू. भाई ज़ीरो कब आएगी, जब ये दोनों जो हैं वो इक्वल, जैसे अब ये दोनों इक्वल हैं तो आपको बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए खुद बताओ. यू विल गेट ज़ीरो, है ना. अब ज़ीरो वैल्यू होने का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल. ठीक है, ये चीज़ें हैं. मतलब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 10 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ मेरे नॉन बॉन्डिंग्स भी हमारे 10 है, तो मेरे पास ये ज़ीरो है, तो ये पूरी ज़ीरो, इस तरह का मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा. राइट, बिकॉज जो देर इज़ नो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स, है ना, दैट्स वाई इट्स अनस्टेबल इन नेचर. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट. When the number of electrons in the bonding molecular orbitals is more, so that particular molecule will be stable. और आपको देखो पॉजिटिव वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो जब आप माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना. तो ये पर्टिकुलर क्या है आपका, आपको वैल्यू भी पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसी आएगी, आपको पॉजिटिव आएगी, तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, स्टेबल होगा, है ना. तो ये कंडीशन एक हो जाती है कि, और यहाँ पे आपको हायर जितना, एक बात याद रखना, जितनी ज़्यादा बड़ी आपको बॉन्ड ऑर्डर की मिलेगी उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा. तो यहाँ पे क्या है कि आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये पोर्शन बड़ा होगा, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू तो मिलेगी नहीं, पॉजिटिव मिलेगी. तो आपका क्या है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल इन नेचर, है ना. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट. इन दिस when this is big, so you will get a negative value, you can see. So over here also unstable molecule you will get, the molecule will be unstable and you will get a negative value of the bond order. ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मैं लिख रही हूँ या ज़ीरो लिख रही हूँ, क्या है, ये बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, तो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ज़ीरो, तो मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल. ओवर हियर द बॉन्ड ऑर्डर इज इन पॉजिटिव, तो मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल. ओवर हियर दिस इज negative value we are getting, so bond order will be negative value it will shows and your molecules will be unstable, so this thing will be there. Second thing is that ये bond order से हमें फ़ायदा होता है about the status of the bond, कि status of the bond कैसा है. status of bond का मतलब होता है कि आपके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है या मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या क्या. अगर जैसे बॉन्ड सपोज करो, अगर बॉन्ड ऑर्डर यू आर गेटिंग वैल्यू इज़ जैसे इंटीग्रल, अगर बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं 1 2 3, तो आप ये बता सकते हो भाई उसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, ये कंडीशन आती है. अब दूसरी कंडीशन आती है आपकी बॉन्ड लेंथ की. बॉन्ड लेंथ इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग अबाउट द बॉन्ड लेंथ, कि वो हायर है. अब क्या है इसका रूल वो भी समझ लो, कि बॉन्ड ऑर्डर, या आप कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, अब इससे समझ लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर से ज़्यादा बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, यही होगा. इफ बॉन्ड ऑर्डर इज़ हाई इट्स मीन बॉन्ड लेंथ इज़ स्मॉल, शॉर्टर. भाई होता है ना, देखो जितनी बड़ी बॉन्ड ऑर्डर होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स लगे होंगे और बॉन्ड लेंथ्स आपकी छोटी हो जाएंगी, है ना, भाई पाई बॉन्ड्स लग जाएगा. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है. तो इफ़ इट इज़ मोर इट विल बी लेस, इफ़ इट इज़ लेस दिस विल बी मोर. सो दिस इज़ देयर. देन इट विल ऑल्सो हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग अबाउट द मैग्नेटिक behavior of the molecule.
नाउ मैग्नेटिक यू शुड अंडरस्टैंड, देखो मैग्नेटिक में हमारे पास दो कंडीशंस हैं हमारे कोर्स में, एक है पैरामैग्नेटिक, one is paramagnetic and other is your diamagnetic. Now what does it means your paramagnetic and diamagnetic? So diamagnetics means suppose a particular electrons are paired, so all the electrons in the molecules will be paired. जैसे अगर हमारे बॉक्सेस हम बना रहे थे, अब जैसे कंडीशन ये भाई ये आपका 1s बना रहा था और आपका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द केस ऑफ डायमैग्नेटिक. एम्प्टी है, नो इश्यूज़, लेकिन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, अब ये दोनों में है, अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में भर गया होता तो ये भी पेयर्ड में गिना जाता, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी डायमैग्नेटिक. अब पैरामैग्नेटिक क्या, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें बढ़ा दो, अब एक इलेक्ट्रॉन सिंगल यहाँ आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक. क्यों, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट्स डजेंट मैटर कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो जैसे आपका नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ये स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा. सो द पॉइंट इज़ दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक. ये कंडीशन आई थी जब हमारे पास यहाँ 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे और पैरामैग्नेटिक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा. तो दिस वे ऑल्सो यू कैन जज. और एक कंडीशन होती है कि जो पैरामैग्नेटिक का केस होता है, अब हम उसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि कब तुम, जैसे अब सपोज़ कर, ये तो हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में तुम्हें दिखा दिया करके, लेकिन अगर यही कंडीशन तुम्हारी तुम उसमें करो बॉन्ड ऑर्डर की कंडीशन में, तो तुम कैसे जज करोगे कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या फिर ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है. सो द केस इज़ अबाउट योर पैरामैग्नेटिक में हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आती है बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है. तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो आप उसको ये कह देंगे कि भाई वो पैरामैग्नेटिक है. लेकिन अगर होल नंबर वैल्यू आ रही है तो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो हो भी सकता है पैरामैग्नेटिक और नहीं भी. लेकिन अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है कभी भी आपकी बॉन्ड ऑर्डर की फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 100% वाली बात होती है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देगा तो आपको जिस कोई भी डेसिमल में ले जाए 1/2 इस तरह की, तो आपको वो 100% इंडिकेट होगा कि वो पैरामैग्नेटिक की कंडीशन में आएगा. जैसे इसको देख लेते हैं, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं, हाफ है तो नंबर ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कैलकुलेट करा आपने, ये आ गया 2 माइनस आपका ये 1 है इधर, ठीक है. सो ये आपका 1/2 इंटू 1. अब ये क्या है, देखो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है 1/2. सो 1/2 आने की वजह से क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल वैल्यू ये पैरामैग्नेटिक में आ रहा है. सो डिसोसिएशन एनर्जी होती है कि भाई आप मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो आयंस दे दे, इस तरह से चीज़ें हैं. तो डिसोसिएशन एनर्जी जो है बेसिकली आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर की. पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आई एम जस्ट टेलिंग यू. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका हाई है तो डिसोसिएशन एनर्जी विल बी ऑल्सो हायर फॉर द मॉलिक्यूल. सो दिस थिंग यू हैव टू प्लीज़ फोकस ऑन ऑल द पॉइंट्स. बट इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज टेलिंग यू अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर्स एंड द वैल्यूज़. एंड सेकेंड थिंग इज़ पैरामैग्नेटिक. 100% शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये दोनों पूछे जाते हैं. सो एवरी ईयर इज़ बीन आस्क्ड, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट.